21st century teacher learner. So these are the qualities of the traditional teacher and the 21st century teacher. There are the minor difference between. So now we will go for this. Traditional teacher learner is the sit and get, but 21st century teacher is move and experiment. It means that 21st century teacher will go with the more experiment and the moments and the practical projects also than the traditional teacher, where the traditional teacher just sit and get and deliver the lecture. After that, the second trait is the learner as the receptor, where is the 21st century, the teacher is the behave the learner as the initiator. Expectations say for all, students navigate choices. Teachers tell, student construct the meaning. More practical in the 21st century. You can here see the difference between the traditional teacher as well and the 21st century teacher as well, and the learner responsibilities has changed and oriented from the innovation style product oriented process and the product oriented paper pencil driving technology enhance the learning and the multimedia driven explicit direction no limits isolated learning private shared global collaborations complaint problem solver. Traditional teacher just come do the complaint, where is the 21st century will go to the problem solver. They will just not go for the complaint, they will go for the practical work and they will adopt the problem solver technique. Answer in the primary, question as a primary. Closed system hai, where is the 21st century teacher and learner is the open system, right? Stayed the same, changes constantly, knows facts, where is the inquirer, there are a right way, no right way. Wait for results, immediate gratification. So the conclusion of this all the chapter is the facilitating learning is empowering for the both of the learner and the teacher and the free the teacher from the many of the burdens of having to be an expert might entail. It would traditionally have been seen as the weakness for the teacher to say, I don't know, let us find out, I don't know, do any of the students know the answer? But the times have changed and so must be the role of the ELS teacher. Yani वो आपको ये कह रहा है कि एज अ फैसिलिटेटिंग जैसे हमारा टाइम अभी चेंज हो गया है तो एक आपका जो टीचर आपको पढ़ाने वाला है उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। जब एक टीचर आपको ये कहता है कि आई डोंट नो मुझे नहीं पता चले इसको फाइंड आउट करते हैं या मैं आपको फिर बताऊंगा ये इट मीन इसका मतलब है कि आपको आंसर नहीं आता, क्या स्टूडेंट को सारे आंसर्स मालूम होते हैं? तो आपको पढ़ाने के लिए खुद भी एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि सारे क्वेश्चंस के आंसर और सारी एम्बिग्यूटीज आप उनकी एक स्टूडेंट की क्लियर कर सकें। सो दिस इज द क्वेश्चन in the front of you related to this chapter, so you will give me the answer of this. What do you think about the demands from the teacher in the currently changing classroom environment? Let's create your answer with any current Pakistan example. So this is the question for you, all of the students. Then you will give me the answer of this question. Yes, I'm waiting. Write your answers in your chat boxes. The question in the front of your screen, are the slides visible to all of you? If yes, then the question is on the screen and you will give me the answer of it. यस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिमांड्स फ्रॉम द टीचर इन द करंटली चेंजिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट? आप क्या डिमांड करते हैं टीचर से अब के इन्वायरमेंट के बारे में कि टीचर क्लासरूम से कैसा बिहेव करे, अपना इलस्ट्रेट करे आंसर, अभी की करंट एग्जाम्पल कोई भी प्रेजेंट करके पाकिस्तानी एग्जाम्पल के साथ। सो यस, यस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और इसका आंसर आप लोग करेंगे।
highly experienced and she or he must. What she is delivering and she must be highly compatible and qualified. Okay. डिमांड है कि क्या डिमांड आप लोग करते हैं, हाईली क्वालिफाइड विद एक्सपीरियंस, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड हो गया, हाईली जाहिर सी बात है जब क्वालिफाइड नहीं होगा तो वो आपका सो यू सो डू यू। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि क्वालिफाइड, जाहिर सी बात है क्वालिफाइड होगा तो वो टीचर बनेगा ना, ये तो नहीं है। वो आपसे कह रहा है कि डिमांड क्या है, अब की आपकी करंटली डिमांड की वो बात कर रहा है। इट मीन्स कि आपकी जो अब 21st सेंचुरी चल रही है इसके अंदर क्या डिमांड है, यानी कि वो टेक्नोलॉजी का भी नो हाउ रखता हो, ठीक है, एवीएट का इस्तेमाल उन्हें उसे आता हो, आपके क्वेश्चन आंसर का वो आंसर कर सके, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकल कामों को जानता हो, फिर वो आपकी प्रेजेंटेशन को जानता हो, बोर्ड के इस्तेमाल को जानता हो, ठीक है ना। क्वालिफाई जाहिर सी बात है टीचर तो वही बनेगा ना जो हाईली क्वालिफाई होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप अब जो आपकी करेंटली, फिर आपको ये पता हो कि जो इंटरनेशनली जो आप जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो हर किसी को लेकर चलना है, ठीक है। आपको जो है वो स्टैंडर्ड में बात है, तो नीड है, आप बेसिक नीड बात है, कुछ आप डिवेलपमेंटल इश्यूज़ का उसे पता हो कि कौन कौन से इशू करें। अच्छा, फिर उसे ये पता हो कि मेरा स्टूडेंट जो है उसका बिहेवियर क्या है, वो कौन से स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग पर खड़ा है, फिर उसकी नीड्स क्या हैं। कुछ क्लास के अंदर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। Teacher should be cooperative with the student, should be explained in simple words and allow the student to express their thoughts. Okay, टीचर को स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली होना चाहिए ताकि जब उन्हें कुछ समझ ना आए तो बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, यानी रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं उसे लगानी चाहिए, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल उसको करना चाहिए, स्टूडेंट को भी करना चाहिए, टीचर को भी करना चाहिए। ठीक है, आज के सब्जेक्ट का नाम क्या है, हम पढ़ रहे हैं ये इंटरेक्टिव टीचर के बारे में पढ़े हैं, क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमारा सेकंड चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो चुका है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट सोर्स ओके, एक्सपीरियंस टीचर है, यस मैम, वेल एक्सपीरियंस ओके, यस मैम, बीइंग अ टीचर ऑफ अ सिस्टमैटिक स्कूल आई ऑब्जर्व दैट टीचर शुड बी कंप्लीटली प्रिपेयर बिफोर द एंटरिंग क्लास। हाँ, बिल्कुल प्री प्लान होना चाहिए ना, उसे प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, लेसन प्लानिंग के साथ होना चाहिए। टीचर शुड बी अंडरस्टैंडिंग और टीचर शुड बी लुकिंग भी होना चाहिए, हाँ, गुड लुकिंग भी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ये ना हो कि सोया वो उठ के कभी चला जाए और स्टूडेंट से पहले आगे इनएक्टिव बैठे हुए होते हैं, उनको अच्छी तो कैसे करेगा। टीचर टीचर फ्रेंडली, टीचर स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी फर्स्ट है, टीचर 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 को लगा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग और राइट, और टीचर को राइट नहीं आ रही है, learning outcome SLO, use the different techniques, know about the deliver lecture. Okay, आज सब्जेक्ट नाम क्या है मैम, रोल ऑफ अ टीचर चैप्टर नेम। ओके, आ रही है वॉइस की, आ रही है। ओके, गुड देन, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर which is the unit number 3. For Pakistan, ठीक है, the unit number 3 is ELT models for Pakistan. ELT models for Pakistan, English learning teaching models for Pakistan. ELT in Pakistan.
क्या है ELT Pakistan? Importance of English language in Pakistan. Of all the languages in the world today, the English deserves to be regarded as a world language. It is the world's most widely spoken language. Communication means, it is the common mean of the communication, यानी ELT पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन मीन एक आपका ज़राए जो है वो मवासलाती एक निज़ाम आप लोगों का बन चुका है, एक दूसरे से बातचीत करने का ये निज़ाम बन चुका है। इसके अंदर हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। इट इज़ द कॉमन मीन ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल ऑफ द डिफरेंट नेशन। वन पर्सन आउट ऑफ द एवरी फोर ऑन द अर्थ can be reached through the English. Randall's quick point out there are the now something like the 250 million people for whom English is the mother tongue or the first language. If we add to this the number of the people who have a working knowledge of the knowledge of the English as a second language or the foreign language, we raise the total to about the 350 million. यानी आपकी इतनी ज़्यादा आबादी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आजकल बोल रही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द रीडिंग इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम जो वजह है जो हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं वो क्या है कि ये वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुकी है, दुनिया की लैंग्वेज बन चुकी है। इज़ दैट द वर्ल्ड्स नॉलेज इज़ enriched in English. Countries in Asia and the Africa that were till recently under the British rule get their scientific knowledge and the knowledge and the technological know-how, the English books. It is knowledge of the English that help these countries maintain the high level of their intellectual and scientific training and achievement. English is being learned and used all over the world, not out of the any position, but through the realization that it has certain inherent advantages. एडवांटेज भी हैं इसके, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। टुडे द कंक्लूजन ऑफ द लर्निंग इंग्लिश एंड नो लॉन्गर merely political but scientific and technological. And no longer is English the language of the Great Britain only, it is the language required by the world for the greater understanding. It is the most international of the language. यानी ये नहीं है कि सिर्फ ये बरतानिया की लैंग्वेज रह गई है, बरतानवी ही सिर्फ इसमें इक़्तिदार के अंदर आते हैं, बाकी सारे भी जो एक इंटरनेशनली जिसको लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं ना, वो अब इंग्लिश बन चुकी है। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, जो सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो राइटिंग की गई थी, या जिसको आप कह लें कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसको कहा जाता है? अम्बरीन मुर्तज़ा शेक्सपियर? नो। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आयशा खान? नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। जॉफरी, यस एग्जैक्टली, जॉफरी चौसर को कहा जाता है, was the one. Yes, जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किस राइटिंग की वजह से कहा जाता है? उसकी एक बहुत मकबूल राइटिंग हुई थी जो उसने टोटली इंग्लिश में लिखी थी, फ्रेंच का असर उसने उसमें ख़त्म कर दिया था। इससे इंग्लिश से पहले फ्रेंच और लैटिन ज़्यादा बोली जाती थी, और ये इनका जो इरा था वो स्टार्ट हुआ था, इंग्लिश का जो इरा जो स्टार्ट होता है वो 465 से स्टार्ट होता है, 465 एडी। आफ्टर दैट गो फॉर द प्योरिटन एज, रोमांटिक एज, मॉडर्निज्म। ठीक है, और रोमांटिक एज से पहले जो है वो आपकी प्योरिटन एज आ जाती है, प्योरिटन एज से पहले आपकी ओके कैंटरबरी टेल्स। यस एग्जैक्टली, इट इज़ द कैंटरबरी टेल। बार बार कट जाता है, क्या करें, अब सिग्नल की वजह से मैसेज लेट हो रहे हैं। जॉफरी चौसर, यस एग्जैक्टली, इट इज द जॉफरी चौसर एंड ड्यू टू द कैंटरबरी टेल्स he knows very well in the time of the 14th century, 1455 to 1564, and it was the Canterbury Tale. Yes,
Canterbury Tale was the famous at that time, and he wrote in the English, and that was the time when he wrote all the characters of that time of the 14th century in this Canterbury Tale. कैंटेबरी टेल जो थी वो दरअसल उसकी एक बुक थी जिसके अंदर उसने 29 एक्लिजिस्टिकल करेक्टर्स उसने उसमें ऐड किए थे, और उसमें सिर्फ 2 करेक्टर्स जो थे वो नॉन करप्ट थे, ठीक है, जिसमें पार्सन था और एक और कलर करेक्टर था, ठीक है। इनको सिर्फ दिखाया गया था कि ये नॉन करप्ट हैं, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, ये बड़े दिल के अच्छे हैं, बड़े साफ हैं। उसके अलावा उसने बाकी जो सारे कैरेक्टर उसके अंदर जो उसने पुट किए, 427 कैरेक्टर्स जो उसने उसके अंदर पुट किए, वो सारे करप्शन बेस्ड थे। यानी उसने उस टाइम की सोसाइटी के बारे में उसने दिखाया था, 14th सेंचुरी के बारे में उसने दिखाया था कि कौन-कौन से लोग जो हैं वो अब इस टाइम में रह रहे हैं, ठीक है? और उनका पेशा कौन-कौन सा है और लोग किस तरह से करप्शन करते हैं। उस दौर में भी करप्शन चलती थी और लोग लॉयल नहीं थे, और बेशक वो कोई ट्रेड हो जाए, ट्रेड करने वाला हो जाए, बेशक वो कोई मर्चेंट हो जाए, बेशक वो कोई पार्सन हो जाए, कोई पादरी हो जाए, किसी चर्च का कोई लेडी हो जाए, ठीक है, कोई बाल बनाने वाला हो जाए, कोई जादू करने वाला हो जाए, कोई मैजिकल वर्ड का जिसको आप कहते हैं, कोई मैजिशियन हो जाए, तो ये सारे वो कहते हैं कि ये सारे अपने अपने फ़ायदे के लिए वो लोग, मटेरियलिस्टिक वर्ड था उस टाइम जो 14th सेंचुरी ने उसने जो है वो बताया था। बिल्कुल। और टोटल टोटल कैरेक्टर वाज़ 29 कैरेक्टर, एक्लिजिस्टिकल कैरेक्टर टोटल उसने लिखे थे, और मुझे स्लाइड्स शो नहीं हो रही, सबको नहीं हो रही? सेम सिचुएशन नाउ इन अ डे, यस एग्ज़ैक्टली। तो उसने उस टाइम जो है वो उस टाइम की सारे कैरेक्टर्स उसने लिखे थे, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई हासिल हुई थी, और उसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, और इंग्लिश जो थी उसने अपनी इस राइटिंग के अंदर लिखी थी। फिर जो सबसे पहली जो इंग्लिश के अंदर जो नॉवल लिखा गया था वो कौन-सा था? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक सबसे पहले नॉवल लिखा गया था, वो 14th सेंचुरी में नहीं लिखा गया था, वो इससे भी पहले लिखा गया था। वो कौन-सा नॉवल था? उसका नाम अगर किसी को पता हो तो? अमरीन मुर्तज़ा क्रूसो, आवाज़ नहीं आ रही मैम। रॉबिन्सन क्रूसो, हाँ, यस, रॉबिन्सन क्रूसो ने लिखा था, लेकिन लिखा कौन-सा था? नॉवल का नेम क्या था? डैनियल डोफे नहीं। रवर्ड बेओवुल्फ नहीं था? बेओवुल्फ नहीं था? रॉबिन्सन क्रूसो, यस, ये तो यही था। यूनिट 1 की स्लाइड शेयर कर दें, ठीक है, कर देती हूँ। अच्छा, आप लोगों का वो ग्रुप नहीं बना हुआ 9060 का, आप लोग उसके अंदर ऐड नहीं है? तो मेरे ख्याल से वहीं पर ही शेयर कर दिया जाना वो बेहतर था। चलिए यहीं पे कर देती हूँ। नो, इट वाज़ नॉट डेविड विलियम, इट वाज़ द रॉबिन्सन क्रूसो। मैम ग्रुप में कर दें, चलें ग्रुप में भी कर दूँगी। ली मोर्टे, यस एग्ज़ैक्टली, ली मोर्टे। ओके, गुड, वेल डन। तो थोड़ा-सा जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो जिन लोगों को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो थोड़ा आप बीएस जब इंग्लिश कर रहे होते हैं, तो फिर इसको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज कब से स्टार्ट हुई, पहली राइटिंग इसकी कौन-सी थी, और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसको कहा जाता है, इंग्लिश राइटिंग किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा किसे कहा जाता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जब आप आगे इंटरव्यू में किसी लेवल पर भी जाते हैं, तो आपसे पूछी जाती हैं। और आपसे फिर पोएट्री के बारे में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पोएट्री आपको किसकी ज़्यादा पसंद है? शेक्सपियर की पसंद है, आपको इलियट की है, आपको किसकी ज़्यादा पोएट्री पसंद है, ठीक है ना? तो इंग्लिश पोएट्री आपका सब्जेक्ट है ना? इंग्लिश पोएट्री होगा आपका सब्जेक्ट, नाइट की पसंद है, अच्छा। अ
किसकी पोएट्री आप लोगों को ज़्यादा पसंद है इंग्लिश में, या कभी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, कहीं से पढ़ी हुई गुजरी हो? वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ की ठीक है, अच्छा वर्ड्सवर्थ की पसंद है, शेक्सपियर से सिलेबस के अलावा नहीं रीड की कभी, अच्छा ठीक है, कीट्स, शेक्सपियर को ही पढ़ा है, थोड़ा नेचुरल को ही, अच्छा तो फिर नेचुरल अगर आपको पसंद है तो कीट्स की पसंद होगा ना, या वर्ड्सवर्थ पसंद होगा? ऑज़मैंडियस, वर्ड्सवर्थ इज अ गुड टेस्ट. I naturally, my favorite is Shakespeare and Keats, my favorite in English literature. Okay, the English press in the country is the very powerful and enjoy not only the more circulation but also the better influence than the vernacular press. English has been rightly described as a language of high opportunity. Knowledge of the English is a successful passport for the employment. We can examine the importance of the study of the English in Pakistan in the following heads. We can examine the importance of the study of the English in Pakistan under the following head, which is the English as an international language, English as a window on the world, English as a library language, English as a linked language. The status of English in Pakistan, the use of English in the खास subcontinent started as the थोड़ी सी अब ये इंग्लिश के स्टेटस के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में कब से स्टार्ट हुई है, द यूज ऑफ द इंग्लिश इन द खास सबकॉन्टिनेंट, जब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं काफ़ी सारे हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एक्सीडेंट, but now it has become an economic academic reality. The need for the English as a language of the opportunity and development has been pointed out by several international nations and the historic bodies of the competence from the time to time and examine and define the role of the English in our country. यानी आपके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी इसकी बड़ी डेवलपमेंट है कि हर किसी कैंडिडेट एग्जाम कमीशन से किसी एग्जाम के लिए जाते हैं खुद भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अच्छा आपसे मेरा जो है वो क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कभी कमीशन का एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों ने, आप में से किसी स्टूडेंट ने कभी कमीशन का एग्ज़ाम दिया हो? कभी कमीशन का एग्ज़ाम दिया हो आप लोगों ने? आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कमीशन का एग्ज़ाम जो है वो देते कब है. ग्रेजुएशन के बाद आप कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ओके ठीक है, PSSB ठीक है, वेल डन. ओके नो मैम, कायरा में भी ओके यस ओके वी डू. मैम सोचा था CSS यस, CSS and PMS also. I did as well and I qualified the CSS also. Yes, ma'am, I know, but I did not. Okay, I just passed CSS. Yeah, I have also. Okay, yes, CSS. One attempt. Good. At least you should try, and you'd also try. एलोकेशन होना ना होना ये बात की बात होती है, किस्मत की बात होती है, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए. ये आपका नॉलेज जो है वो एनहांस करता है. लेट्स सी व्हाट आई एम गोना बी. Okay, no ma'am, I hate this so difficult. No, it's not difficult. It's the basic thing. It's all related to the basic things. जब आपका एम बिग होता है, जब आपका एम बहुत बड़ा होता है तो फिर ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो नहीं देखी जाती. स्टडी में तो बिल्कुल नहीं देखी जाती है. अगर आप इनके
किसी भी इम्तिहान के नाम से जब आ जाते हैं तो आप उसके लिए परफॉर्म क्या करेंगे? मैंने तैयारी करवाई है अपने स्टूडेंट्स को। मेरी अपनी एकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है सीएसएस की। वो इस साल जो है वो क्लियर होंगे। उन्होंने एमपीटी माशाल्लाह से क्लियर किया है और अब जो है वो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। और नेक्स्ट फिर जो सीएसएस में ज़ाहिर सी बात है, सीएसएस की तैयारी है तो ज़ाहिर सी बात है वो आगे पीएमएस में भी अपीयर होंगे। जी, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। मैं तैयारी करना चाहती, आप करवाएंगी क्या? अभी इस साल का तो सीएसएस जो है वो फेब में उसके तो एग्जाम होने वाले हैं ना, उसका तो हो गया है। अभी नेक्स्ट ईयर अगर आप करना चाहती हैं तो यस डेफिनेटली आई कैन। मैम मुझे भी तैयारी करवा दें सीएसएस की, कर लें आप तैयारी करनी है तो। मुझे तो कोई इशू नहीं है, मेरी तो अपनी एकेडमी है माशाल्लाह, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और कुछ ऑनलाइन भी मेरे साथ फिर चलते हैं। जी, क्वालिफाइड सीएसएस। लेकिन ये है कि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। आप ये कह लें कि आपको कमिटमेंट अपने साथ करनी पड़ती है और अपने एम के साथ करनी पड़ती है, फिर आप इसको क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप जो हैं वो बिल्कुल आप कह लें कि अब मेरी बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। मैंने 6-7 महीने लगा लिए हैं, मैंने बड़ी अच्छी डट के तैयारी कर ली है और सारे मैंने अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी तैयारी हो गई है, 12 मैंने पेपर मेरे तैयार हो गए हैं। तो उसके बाद ही आप जो है वो अपीयर हों, ठीक है? तो इसके लिए पूरा साल तैयारी करनी पड़ती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होते हैं जो विदिन 6 टू 7 मंथ भी तैयारी कर लेते हैं। मैम व्हाट अ फी ऑफ सीएसएस इन योर एकेडमी पर मंथ? यहाँ पर मैं बताऊंगी तो आप लोग डर जाएंगे। आई डिड इन जस्ट 5 मंथ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना, वही मैं कह रही हूँ कि डिपेंड करता है ना, स्टूडेंट के कैलिबर पे डिपेंड करता है। कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं 5 to 6 मंथ में भी कर लेते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं, जिनको बेसिक बेसिक चीज़ों को पता होता है ना, जिनकी राइटिंग स्टाइल अच्छा है, जिनका थोड़ा सा कैलिबर ज़्यादा अच्छा है, जिनकी विकेबलरी अच्छी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो वो लोग कर जाते हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके लिए जिनको पहले मुझे बेसिक करवानी पड़ती हैं सारी चीज़ें, बेसिक करवा के उनकी इंग्लिश को इन्हेंस करना पड़ता है, फिर जाके उनको समझ आ रही होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको करवानी ही नहीं पड़ती, उनको ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ़ उनको कॉन्सेप्ट देना होता है, कॉन्सेप्ट वो कैरी कर लेते हैं। मैम प्लीज़ मैम बता दें। नहीं मैं यहाँ पर मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगी, हम क्लास ले रहे हैं, सिर्फ़ क्लास अटेंड करेंगे। वो तो यहाँ पर कमीशन का नाम आया तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई और आपके साथ डिस्कस कर ली। अच्छा, unfortunately, the status of English in our country has become a controversial one. There are the people who favor the retention of the English for its practical utility. On the contrary, there are the certain section pocket that are the inimical to the English and want to do away with it. English is the language of the administration and a compulsory subject at a school, college level. It opens the door of the employment. Our aim in teaching English is to our student is enable them to use English with ease and comfort। और हमारा क्या मकसद होता है टीचिंग इंग्लिश करने का कि हमारा जो स्टूडेंट है वो इस काबिल बन जाए कि वो इंग्लिश को आसानी से सीख सके और उसको समझ सके। दे शुड बी एबल टू स्पीक, और फिर उनको इतनी समझ हो कि हम लोगों ने बोलनी भी है और हम लोगों ने लिखनी भी है। अच्छा, इस क्लास में ना मैं आपके लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे आपके माइक जो है वो ओपन करूँगी, ठीक है? तो आप लोग फिर खुद भी जो है वो बोल भी सकेंगे साथ-साथ। तो मैं आप लोगों की फिर देखूँगी कि आप लोग जो है वो इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, आपकी स्पीकिंग कितनी अच्छी है। इट विल enable them to maintain the high level of their intellectual and the scientific technological training and achievement. The teaching of English in Pakistan has been the text-based program. A Pakistani learner is motivated into the learning English language for
अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ना आपको ना लिंग्विस्टिक्स अगर जो है वो आप लोग पढ़ लेते हैं, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो लिंग्विस्टिक्स का पता नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोगों का कोई आप लोगों ने सिलेक्ट किया है अपने कोर्स के अंदर लिंग्विस्टिक्स को कि नहीं किया। तो अगर आप लिंग्विस्टिक्स को सिलेक्ट कर लेते और तो आप लोगों की ये जो वोकैब्युलरी होती है और जो हर एक लफ्ज़ को बोलने का जो एक तरीका होता है और साउंड होता है, ये भी आप लोगों को प्रोनाउंस करना आ जाता। अच्छा, अब मुझे एक ये बात बताएँ कि एक प्रोनाउंस होता है और एक हम लोग कहते हैं ना एक प्रोनाउंस है ना वर्ड, तो हम इसमें कह रहे एक होता है प्रोनाउंसिएशन और एक होता है प्रोनंसिएशन। तो इसको आप कैसे साउंड आप कैसे इसका प्रोड्यूस करते हैं? लोग कहते हैं हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है ना हमारी ऐसी है, कुछ कहते हैं हमारी प्रोनंसिएशन ऐसी है। तो इसके अंदर राइट जो प्रोनंसिएशन है या राइट प्रोनाउंसिएशन है वो कौन-सी है? लेकिन जो इसको अच्छा कभी गूगल से ना वर्ड्स को लिखा करें और उसका साउंड जो है वो सुना करें कि हर वो वर्ड जो आपको नहीं बोलना आ रहा होता है उसकी क्या है उसको कैसे जो है वो साउंड उसका कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, वेरी गुड करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है करते हैं तो ये आप लोगों की स्पीकिंग को इन्हांस करेगा। Studies abroad, greater job opportunities outside has Nigeria, social machinery of analytic faculties, trade or the commerce, academic faculties. आपको मैं एक छोटा-सा अगर एक क्लू बता दूँ साउंड को इसको साउंड को प्रोड्यूस करने का कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो जो पी होता है ना पी, ठीक है? वो फी और एच का साउंड दे रहा होता है, ठीक है? जो सी होता है, सी भी खा का साउंड दे रहा होता है, ठीक है? जो टी है वो ठा का साउंड देगा, ठीक है? और जो आपका फी है, पी का तो मैंने आपको बता दिया ना। तो ये जो होते हैं जो रे होती है, रा रे आर का जो साउंड होता है वो थोड़ा-सा ऐसे करके हम लोग स्पीक कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये थोड़े-से चीज़ों का जब आप ख़्याल रख लेते हैं तो आपका जो साउंड होता है वो बहुत एनहांस हो जाता है, ठीक है ना? आपका जो साउंड है वो बहुत एनहांस हो जाता है, कभी बोला करें अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी बोल के प्रैक्टिस किया करें, इन सारी चीज़ों की, ठीक है ना? तो आपको जब आप प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर अब जब आप जाते हैं तो फिर आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं पेश आ रही होती। आपको मुझे नहीं पता आपको पहले कभी इस चीज़ के बारे में किसी ने गाइड किया या नहीं किया, बट आई एम डूइंग, राइट? मैम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री में वर्ड चेंज इंग्लिश के पाकिस्तान में चेंज तो कैसे करेक्ट करें? नोटेड मैम, ओके। लिंग्विस्टिक्स मैम मेरी एलएमएस से ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ज्वाइन करके देखें हो जाएगी। नो साउंड्स ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। हाँ, सिमेंटिक्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और कॉन्सोनेंट्स का भी पता हो, वोवेल का भी पता हो, सिमेंटिक्स का पता हो, ठीक है? The educational splits of the teaching of the English as a window on the world. The politician wants the English because of the inter and intra communication. फिर वो कहते हैं कि डिफरेंट एजुकेशनिस्ट जो हैं उनको इंग्लिश की ज़रूरत है, पॉलिटिशियन है, सियासतदान है तो उनको जहाँ पर मीटिंग्स होंगी तो वहाँ पर उनकी ज़रूरत होगी। डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स रीजन जो है वो कंट्री के अंदर डिफरेंट वर्ल्ड वाइड जो है वो बोले जाते हैं, ठीक है? फिर आगे है कंडीशंस। कंडीशंस कौन सी होती हैं इंग्लिश को बोलने के लिए? कंडीशन अंडर
which English is taught in Pakistan under the conditions which are far from the satisfactory. Some of the weaknesses in our program of the teaching English below are the, यानी हमारी कंडीशन इंग्लिश की क्या चल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कह रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री नहीं चल रही। कौन कौन सी उसके अंदर चीज़ें मौजूद नहीं है या किन चीज़ों की कमी है, तो वो कह रहा है लैक ऑफ अ क्लियर कट पॉलिसी। आपके लिए जब कोई पॉलिसी ही नहीं है, पॉलिसी कौन बना कर देता है? जो आपकी हुकूमत के लोग होते हैं, जो अथॉरिटेटिव होते हैं, वो आपको पॉलिसी बना कर देते हैं। जब वो लोग ही सीरियस नहीं है डिपार्टमेंटल इश्यूज के अंदर, वही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं होती। तो लैक ऑफ द क्लियर कट पॉलिसी क्या है? इट इज एडमिटेड ऑन द ऑल हैंड दैट the standard of the English has gone down in our school and colleges. One of the reason क्या है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है इंग्लिश का स्कूल और कॉलेजेस में बड़ा कम होता चला जा रहा है इंग्लिश का। वन ऑफ द रीजन, सबसे बड़ी वजह ये है फॉर द डिक्लाइन ऑफ द स्टैंडर्ड्स इन द लैक ऑफ द क्लियर कट पॉलिसी रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ द इंग्लिश इन द स्कूल ऑन द करिकुलम। ठीक है, जब आप एक करिकुलम बना रहे होते हैं, पूरा एक कंटेंट पूरे साल के लिए बना रहे होते हैं या 6 मंथ के लिए बना रहे होते हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारी पॉलिसी क्या है। हमने अगर इंग्लिश को हमने कहीं पर भी इन्हेंस करना है, तो हमारी एक कोई ना कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए ना, एक स्ट्रक्चर, एक प्लान तो होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों के अंदर हम इंग्लिश का इस्तेमाल करवाएंगे और कैसे करवाएंगे। टीचर क्या करेगी, टीचर का रोल क्या होगा, स्टूडेंट कैसे करेंगे, उसके अंदर कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी कि नहीं होगी, कोई प्रैक्टिकल हम काम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, इंग्लिश के अंदर कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवाएंगे, कोई वहाँ पर हम जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएंगे इंग्लिश के अंदर के नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के जब इवेंट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, तो तभी हम एक पॉलिसी के तहत हम लोग चलेंगे और तब हमारी जो एक स्पीकिंग है ना वो इन्हेंस होगी। ठीक है, एजुकेशन इज पॉलिटिशियन एंड द जर्नलिस्ट एक्सप्रेसेस डिफरेंट व्यूज ऑन द प्लेस दैट इंग्लिश शुड बी गिवन इन पाकिस्तान एज व्यूज एक्सप्रेस्ड आउटसाइड डू in their impact in the classroom, and it is the time to lay down a clear cut policy regarding the place of the English in the school and colleges curriculum for an effective study of the language. Second reason क्या है? Little understanding of aim. अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोग ना ये जो एम का लफ्ज़ है, ऑब्जेक्टिव का लफ्ज़ है और गोल का, ये हम लोग ना तीनों एट अ टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इनमें ना थोड़ा-थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। तो अगर मुझे ये कोई बता दे कि व्हाट इज़ द एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी। ओके, गोल्स आर शॉर्ट टर्म्ड, ठीक है, और एम और ऑब्जेक्टिव। एम मोटिवेट अस, ठीक है, एम इज़ द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है, आगे बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें, व्हाट इज़ एम, ऑब्जेक्टिव एंड गोल।
Aim is the base of life. We cannot hear you, madam. Aim is the purpose of life. Okay. To achieve aim, we must have a command on our goals. Aim, ठीक है. Life is goal without aim in the source goal. If we want to get something, life is a target जो हम achieve में चाहते हैं. Goal we achieve many in our life. मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि what is aim, what is objective and what is goal. ठीक है. गोल आपका जो होता है ना, एम आपका कंट्री लेवल पर होता है. ठीक है. एम आपका कंट्री लेवल पर होता है, फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है. गोल आपका जो होता है वो आपका शॉर्ट जो होता है इन टर्म होता है. ठीक है. और जो आपका एम होता है, और सॉरी, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका क्लासरूम लेवल पर होता है. ठीक है. जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लासरूम लेवल पर होता है. ऑब्जेक्टिव आपका सबसे जिसको कहते हैं ना शॉर्टर इन टर्म होता है. रोज के कोई ना कोई आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं. ठीक है. जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो किसी न किसी रोज के उसके ऑब्जेक्टिव और होते हैं. ठीक है. एम ब्रॉडर लेवल पर होता है. एम ब्रॉडर लेवल पर होता है, जैसे आप कह सकते हैं कंट्री लेवल पर. ठीक है. लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है. गोल आपका जो होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है, आपका सिलेबस बेस्ड होता है. गोल आपका होता है ना. जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका सिर्फ क्लासरूम बेस्ड ऑब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट इन टर्म होता है. डेली आप ऑब्जेक्टिव अपना चेंज कर रहे होते हैं. ठीक है. आपका एम डेली चेंज नहीं हो रहा होता. आपका मकसद वही रहता है. पूरा साल आपका मकसद एक ही रहता है ना. मकसद तो चेंज नहीं आप करते रहते ना. आपका पूरा साल एक ही मकसद रहेगा, लेकिन आप उसके ऊपर काम करते रहते हैं. ठीक है. तो ये माइनर सा डिफरेंस होता है. हम लोग ना अक्सर गोल, एम और ऑब्जेक्टिव को साथ साथ जो है वो यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर जब आप देखें ना, और एजुकेशन के अंदर जब आप देखें तो इनका बड़ा फर्क होता है. ठीक है. अब ये देखें, हम लोग तो ये अक्सर कह रहे होते हैं कि एम, गोल और ऑब्जेक्टिव एक ही चीज है, लेकिन देखें इनका कितना फर्क है. ठीक है ना. थैंक्स फॉर योर गाइडेंस. तो फिर ये होता है कि इन सारी लिटिल चीज़ों के अंदर माइनर सा डिफरेंस होता है. ओके. अब हम लोगों ने लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्स, एम्स पढ़ना है हमने, कि हमें अपने एम का पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से इंग्लिश जो है वो हमारी क्या है, लॉस्ट है. हम लोग इसके अंदर हमें इम्पोर्टेंस ही हमें इसकी नहीं पता. हमें इसकी डेली रूटीन और डेली इम्पोर्टेंस का ही जब हमें पता ही नहीं है, तो हम अपना एम इसके साथ क्या सेट करेंगे. अपना क्या हम हमारी जो हुकूमत है उसका कोई एम ही नहीं है इंग्लिश को इन्हेंस करने का. वो हमें क्या पॉलिसी बना के देगी. ठीक है ना. उसे पता ही नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. पूरा साल एक स्टूडेंट जो पढ़ के आ रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. आप लोग बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, आप लोगों को इंग्लिश ना बोलनी आए, या आप लोगों को इंग्लिश में लिखना ना आए, तो इसकी क्या फ़ायदा है इसका. जबकि डिग्री तो आप बीएस इंग्लिश की ले रहे हैं. कहीं पर भी आप जाएँगे, अप्लाई करेंगे, कोई आपसे इंटरव्यू लेगा तो आपकी सबसे पहले वो डिग्री देखेगा. देखेगा कि नहीं देखेगा? वो सबसे पहले बोलेगा, अच्छा बीएस इंग्लिश करके आए हैं, अच्छा बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट है, वाह भई वाह! अब इसको तो इंग्लिश भी बोलनी आती होगी. उसने ये नहीं देखना कि आपने जो है वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपने डिस्टेंस लर्निंग ली है, आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, आपने वर्कशॉप अटेंड की हैं, उसने तो आपकी डिग्री देखनी है. ठीक है. आई वुड हाईली रिकमेंड द स्टूडेंट टू यूज़ द करेक्ट स्पेलिंग एंड नॉट यूज़ द स्लैंग्स. एंड एज़ वी आर द स्टूडेंट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, अब अटेंडेंस के बारे में बताएँ. ही अचीव्ड हिज गोल टू बिकमिंग द किंग ऑफ द इंग्लैंड. भाई मेरा एलएमएस से ज्वाइन नहीं हो रहा, जो डायरेक्ट टीम से कनेक्ट हुआ है. अच्छा, चलें क्लास अटेंड करें, लेकिन ज्वाइन करने के लिए किया करें कि एलएमएस से ज्वाइन हो जाए आपका. ठीक है. The result is that the language is not taught. Okay, unfortunately, the average teacher of the English loses the sight of the aim of the teaching in the language in his day-to-day work.
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हमारी जो है ना इंग्लिश की जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? इंग्लिश की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे है कि देखें हम लोग कितनी ज़बानें बोल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टोटल ज़बानें इस टाइम बोली जा रही हैं वो अप्रॉक्सिमेटली 75 लैंग्वेजेज़ हैं जो हम लोग इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बोल रहे हैं, ठीक है? और मेजॉरिटी देखें, मेजॉरिटी पंजाबी की सबसे ज़्यादा है। 55 to 60% तो पंजाबी बोली जा रही है और इंग्लिश सिर्फ बोली जाती है 10 to 12%। पश्तो बोली जाती है 8%, ठीक है? उर्दू बोली जाती है 10 to 15% बोली जाती है, ठीक है ना? तो जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो पंजाबी बोली जाती है, ठीक है? तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसी वजह से ना कि हम लोग घरों के अंदर पंजाबी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश नहीं है। लेकिन अब इंटरनेशनली देखें तो इसका स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा ऊपर चला गया है। इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनली लैंग्वेज बन चुकी है। कहीं पर भी जाएँगे तो इंग्लिश के बगैर आपका गुज़ारा नहीं है। ठीक है? ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जिसको आप कह रहे हैं ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, तो ये आपकी एक नीड बन चुकी है। ठीक है? या तो हम अपनी लैंग्वेज को उर्दू लैंग्वेज को इतना प्रमोट करते, जैसे चाइनीज़ हैं तो वो चाइनीज़ में ही चाइनीज़ लैंग्वेज में ही बात करते हैं। वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते, क्योंकि वो एक पावरफुल कंट्री है। उसने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया है कि वो अपनी रवायात को वैसे ही कायम किया हुआ है, अपनी लैंग्वेज को उसने इतना स्टेबल किया है, वो कहीं पे भी जाते हैं वो अपना ट्रांसलेटर नहीं साथ लेके जाते। अगले लोगों ने अपना ट्रांसलेटर वहाँ पर रखा होता है कि वो चाइनीज़ है, उन्हें चाइनीज़ में ही बात करनी है, ठीक है? तो हम लोगों ने उर्दू अपना जो हमारी ज़ुबान थी, हमने उर्दू को प्रमोट ही नहीं किया। हम लोग उर्दू में बात करें, जिनको नहीं समझ आती उनको ना समझ आए, ट्रांसलेटर बिठाए, उनकी ट्रांसलेट करें, यानी उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, ठीक है ना? या तो हम अपनी लैंग्वेज को इतना प्रमोट करते कि हमारी हाईली रिकमेंडेड लैंग्वेज होती, ठीक है ना? तो यहाँ पर इंडियन पंजाबी भी अपने पंजाबी, हाँ जी, बिल्कुल। लाइक इमरान खान, बिल्कुल ऐसे ही है। हम पठानों में उर्दू मुश्किल है। 78 नॉट 7, हाँ ये इंक्रीज होता रहता है। तायरा मेहदी कहीं से आप सर्च करें तो 78 आता है, कहीं से सर्च करें तो 75 आती है, ठीक है? इट डिपेंड्स। ओके मैम, हमने उर्दू और इंग्लिश को पीछे छोड़ दिया, सब अपनी ज़बान बोलते हैं। हाँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई मीन मुश्किल से बोली जाती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। लेकिन अब आपके लिए ये ज़रूरी है, आप लोग क्योंकि इंग्लिश में बीएस कर रहे हैं तो फिर आपकी जो स्पीकिंग है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटा बहन-भाई है उसके साथ प्रैक्टिस किया करें। अपने अगर आप कोलीग्स के साथ हैं तो ज़्यादा बोलने की कोशिश किया करें। किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो जब आप प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस आप रेगुलर कुछ ना कुछ छोटे-छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं ना तो फिर आपको ज़्यादा बोलना भी आ जाता है। The result is that of the language is not taught as the skill subject as to be ought to be, and but the knowledge is the subject. ठीक है? Dearth of the competent teachers. बहुत कमी है competent teachers की. Not all teachers of the English are the fully equipped to discharge their duties. Some people believe that no specialized training is needed to teach this language. कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इस लैंग्वेज के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. By and large, teachers of the English themselves are unaware of the latest techniques of the teaching of the language. Their knowledge of the language is insufficient and their pronunciation is defective. ठीक है ना? इसलिए मैं आपको कह रही थी कि जो आप लोगों की अब ये देख लें, यहाँ पर यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है वो भी प्रनंसिएशन लिखा हुआ है ना, प्रनाउंसिएशन नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो लोग बोलते हैं इतने बड़े-बड़े, मैंने देखा है डिपार्टमेंट के अंदर भी लोग बैठे हुए होते हैं, वो भी क्या बोल रहे होते हैं, प्रनाउंसिएशन बोल रहे होते हैं। भई आपकी प्रनाउंसिएशन ये है, ठीक है? तो जब उनको ये आगे से मेरे साथ 1-2 दफ़ा ये वाक़या हो चुका है। तो बड़ी-बड़ी सीट्स के वो लोग थे और वो भी यही बोल रहे थे। फिर मैंने करेक्ट करके आगे से बोला, तो लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप मतलब गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैंने करेक्ट करके फिर आगे से जवाब दिया। तो फिर उनकी भी जो वो प्रोनाउंसिएशन जो थी ना, फिर उनकी भी प्रोनंसिएशन हो गई थी, ठीक है? तो वाओ मैम, यू आर इंटेलिजेंट, ओके। तो ये जो था
इसलिए आपके साथ मैं साथ-साथ क्वेश्चन करती रहती हूँ ताकि आपको ना थोड़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। पढ़ना हमारा मकसद है लेकिन उससे ज़्यादा सीखना हमारा मकसद है। There is a grave shortage of the trained and the fully qualified teacher of the English in almost stages of the educational system. The supervision of the English teaching. अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है supervision. What is the supervision? What is the supervision? English accent mean its pronunciation mean British. Okay. Check balance to supervise. क्या supervise करना? To check through. अच्छा. Teacher observes. Okay. Hmm. To superior things. ठीक है. Guide करना. Administration. Hmm. What is the supervision? आपसे question है मेरा. Okay. Guidance. Supervise something like a target. Good. Observation. Well done. Hmm. Teacher observes through a proper standardized system. Okay. Keeping an eye on the things to make sure everything is well. Okay, good. To see through the something. Good. Good. Well done. Teacher training. It depends. It means overseeing. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसको सुपरविजन कहा जाता है, ठीक है ना। सुपरवाइज करना, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या होता है, सुपरवाइजर होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है, चीज़ों को देख रहा होता है कि सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो जो टीचर होता है वो भी सुपरवाइज और वो भी सुपरविजन के साथ काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो सुपरविजन क्या है कि आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं, आप गाइड करते हैं, कहीं पर किसी को ज़रूरत है गाइडेंस की तो उसको आप गाइड करिए। यहाँ पर सुपरविजन का लफ्ज़ आया तो आपसे शेयर किया मैंने। द सुपरविजन ऑफ द इंग्लिश टीचिंग इन द स्कूल हैज़ द कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है विद हार्डली एनी ट्रेन स्पेशलिस्ट एंगेज इन दिस टास्क। दिस रिजल्ट इज दैट द टीचर रिसीव नो गाइडेंस इन देयर टीचिंग, दे गो ऑन द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द टीचिंग एंड द लैंग्वेज। अच्छा, अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी आप लोग देखें ना तो क्वेश्चन आंसर मेथड नहीं अडॉप्ट किया जाता, ठीक है ना। डिस्कशन मेथड है, ना क्वेश्चन आंसर मेथड है, ना रोल ऑन मेथड है, ना वहाँ पर जो है वो सिट एंड क्रॉस मेथड है, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे मेथड होते हैं ना ये वाले, ये मेथड नहीं अडॉप्ट किए जाते, वही लेक्चर मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है। सबसे ओल्ड मेथड कौन सा है, लेक्चर मेथड है ना। सबसे जो ओल्ड मेथड है लेक्चर मेथड है। और जो लेक्चर मेथड को जो प्रमोट किया था वो किसने किया था, वो प्लेटो था। कौन था जो लेक्चर मेथड को प्रमोट करता था, वो प्लेटो था, स्पार्टन थे, या फिर जो थे वो कौन थे, वो सुकरात थे। प्लेटो का मेथड कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग था, अगर किसी को पता हो तो। सवाटन, क्या सवाटन, सवाटन नहीं स्पार्टन मैंने बोला है। एथेंस और स्पार्टन थे ना। और प्लेटो का जो था मेथड वो था आइडियोलॉजिकल, उसकी आइडियोलॉजी थी। सोक्राटिक मेथड क्वेश्चन आंसर मेथड था। डिस्कशन मेथड इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद जो आइडियोलॉजिकल जो था उसका मेथड वो प्लेटो का था। और जो स्किनर का मेथड था
उसका नेचुरलिस्टिक अप्रोच थी। आईवी पेवलोव की जो थी वो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, ठीक है। बीएफ स्किनर की थी जो बिहेवियरिज्म उसने बोला था, राइट। फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी हैं जिसमें प्रैग्मेटिज्म है, सोशलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, आपका स्ट्रक्चरलिज्म है, आइडियलिज्म है, पैरनलिज्म है। पैरनलिज्म जो है वो यानी कि वो स्टिक रहती है, वो चेंज नहीं होती, उसमें कोई चेंज नहीं होती। आइडियलिज्म के अंदर प्लेटो ने इसको प्रमोट किया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद नो मैम डिस्कशन मेथड, अच्छा क्या मैं एलएमएस सिस्टम से ज्वाइन हूँ। प्लेटो का मेथड बाय प्लेइंग, नहीं वो मारिया मोंटेसरी का था, प्लेइंग विद द स्टूडेंट्स। प्लेटो का जो है वो आइडियोलॉजिकल मेथड है। गॉड यानी कि गॉड ने जो चीज़ क्रिएट की है, जो आइडिया है बेसिक, उसको लेकर वो चलता है, ठीक है। और उसने बेसिक जो मेथड था उसी को उसने अडॉप्ट किया था। एंड आफ्टर दैट यूज टू टीच, यस, हु वर प्रमोटेड द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है ना ये बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ों को प्रमोट जो है वो प्लेटो करता है। आइडियोलॉजिकल जो बेसिस थी और जो गॉड है यूनिवर्स क्रिएट करता है। मोनास्टिक उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी मोनास्टिक थी। पैरेनलिज्म जो है वो भी बिल्कुल स्टिक है, वो भी सिंपल है, वो चेंज नहीं होती, बिहेवियर चेंज नहीं होता, वो एजुकेशन सेम रहती है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाती। वही जो प्रीवियस आप लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं मेथड, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसी ना प्रोग्रेसिविज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है जो कि किरगार्ड ने जो है वो अडॉप्ट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोग्रेसिविज्म है वो है, और नेचुरलिज्म है, ये सारी जो है वो चीज़ें जो है अडॉप्ट की गई हैं। सब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, English readers and the textbooks are the substandard in their writing. No attention has been paid to the selection and the gradation of the structures, although vocabulary has been graded from the year to year. Yet the authors of these books do not take pains to see that it is properly used in the manner of to facilitate and grasp the student. Some of the words which are sought to be taught appear only the ones in the text. In our textbooks, we lay more stress on the subject's matter rather than on the teaching of the language. Inadequate material facilities. Material nahi available. Modern teaching lays emphasis on the use of the audio-visual aids. These aids makes the lesson interesting and easy. And our schools are not equipped with the audiolingual aids such as flashcards, charts, pictures, model, film strips, gramophone records, tape recorders, and internet facility. ठीक है। मटेरियल कौन कौन सा नहीं है, ये ही सारा जो टेक्नोलॉजिकल बेस होता है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स जिसके अंदर आपका फ्लैश कार्ड्स होते हैं, चार्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, मॉडल्स हैं, फिल्म स्ट्रिप्स हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लैनल बोर्ड हम लोग करते हैं, टेप रिकॉर्डर्स हैं, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना।
जब आप लोगों को साउंड नहीं आ रहा होता ना, तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि मैम का माइक जो है वो म्यूट है। वो मैं खुद म्यूट कर देती हूँ, ठीक है? ओके, इन एडुकेट मटेरियल हम लोगों ने कर लिया है द फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम। Since the type of the examination influences the method of the teaching to the large extent, examination in English is to be blamed for some of the defects that have the crept in. Under the present system, a student can get through the examination if he cares to remember the answers to certain stock of the questions. He needs not even read the prescribed textbooks. The result is that although a student succeed in the examination, yet he has no practical command of the लैंग्वेज। लार्ज क्लासेस, एक तो हमारा जो क्लासेस का सिस्टम है, देखें कितनी क्लासेस में लोग होते हैं। यानी अगर आप फिजिकल क्लासेस की बात करते हैं तो एक एक क्लास के अंदर तकरीबन 100 स्टूडेंट होता है, 95 या 65 या 70। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट को जो टीचर है वो नहीं देख सकता। टीचर की कमी की वजह से जाहिर सी बात है एक टीचर को इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो असाइन किए जाते हैं। Thanks to population explosion, classes have becoming the overcrowded, leaving no scope for the individual attention. It is not unusual to come across a class a large and 60 student. Besides, many people come from the families with no tradition of learning. The number of the periods allotted to the teaching of the English has drastically curtailed to make room for the study of some other subjects that have been introduced at the school level. लेकिन इसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैनेज भी वही करेगा ना जो टीचर जो है वो ट्रेंड होगा। हाफ स्टूडेंट्स को एक दिन जो है वो आप कोई भी अगर प्रैक्टिकल काम है तो एक दिन करवा दें और हाफ स्टूडेंट को एक दिन करवा दें, ठीक है ना? तो द साइकोलॉजी ऑफ द चेंजिंग द बिहेवियर, it is difficult to change behavior. Changing one's behavior involves changing one's pattern of thinking. बहुत डिफ़िकल्ट है किसी के बिहेवियर को चेंज करना। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी का रवैया तब्दील कर रहे हैं तो आप किसी का पैटर्न ऑफ थिंकिंग, सोचने का एक तरीका तब्दील कर रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट ईजी टू डिस्कवर, और ये बड़ा आसान नहीं है कि कहीं से हमें पता चले कि स्टूडेंट का बिहेवियर हमें चेंज करने की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल चीज़ है, और इन सारी चीज़ों के लिए एक टीचर को बड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। और Mr. Ronald Makings appear on the teaching of English in difficult circumstances. आप He says the old fashioned type of the benches and the desks which restrict the movement. The noise from the neighboring classes, which may be separated from them by nothing more than a bamboo screen, insufficient provision for their subject in timetable, lack of aids of all kinds, interference from the parents or the dominating conservative headmaster, and finally the requirement of an examination system which places a premium on the written language and the consequently seems to the favor the grammar grinder of the old school. ठीक है, तो ये सेइंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसको ऐड किया गया है आपकी डिस्क्रिप्शन के लिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को टीच करने के, सिखाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। द ट्रांसलेशन मेथड विच इज़ द मोस्ट वेस्टफुल इज स्टिल फॉलोड इन द मेजोरिटी ऑफ द स्कूल। एक तो मेथड ऑफ इंग्लिश जो हम लोग सिखाते हैं, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन मेथड है। हम लोग कहते हैं जी ट्रांसलेशन है जी, ट्रांसलेट करके दिखाएं, ट्रांसलेट करके दिखाएं, ट्रांसलेट करके दिखाएं, ठीक है ना? तो ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा है और अभी तक चल रहा है कि हम इससे जो है वो स्टूडेंट एक उठेगा, पढ़ेगा, ट्रांसलेशन करेगा, तो इससे उसको इंग्लिश आ जाएगी। ओरल वर्क विच इज़ द सोल ऑफ द एनी गुड मेथड इज निगलेक्टेड। ओरल वर्क, बोलना,
बोलना का जो अमल है, जो किसी की कह रहा है कि एक ऐसा मेथड है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। किसी की सोल है, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की सोल है ये। देयर इज़ नो ओरल प्रैक्टिस, वहाँ पर बोलने के अमल की प्रैक्टिस ही नहीं की जाती। ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट एज़ अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑफ द इंग्लिश ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो सोल है इस चीज़ की, इस इंग्लिश को बोलने की, ठीक है? वो इंग्लिश को बोलने की क्या है कि इवन वही मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि आप सिंगल-सिंगल सेंटेंसेस बोला करें, ठीक है? अपने कोलीग के साथ। अब हर टाइम अब मेरे साथ तो नहीं बोल सकते हैं। अभी जैसे मैंने इंग्लिश में देखें थोड़ा-सा लेक्चर डिलीवर करना स्टार्ट किया तो सभी बोल उठे कि मैम मैम हमें तो समझ नहीं आ रही। वो मैंने इसी वजह से किया था। मुझे पता था कि आप लोगों ने बोलना है, लेकिन वो मैंने इसी वजह से किया था कि क्योंकि मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाना था आपको। थोड़ी सी देर मैंने इंग्लिश में लेक्चर को डिलीवर किया है, फ़ौरन स्टूडेंट्स का उसी टाइम रिस्पॉन्स आया है, मैम मिक्स मेथड करें, मैम मिक्स मेथड करें, समझ नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन क्योंकि ओरल प्रैक्टिस आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और जो लिसनिंग से जो स्टूडेंट या लिसनिंग से कोई स्टूडेंट सीखता है ना, वो 75% आप लोग लिसनिंग से सुन रहे होते हैं, और जो प्रैक्टिस से आप लोग सीख रहे होते हैं वो 35% आप प्रैक्टिस से सीख रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों की लिसनिंग स्ट्रॉन्ग है और अगर आप अपनी इंग्लिश को ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश की ओरल ओरल जिनकी इंग्लिश जो है वो वीक है, उनके लिए क्या है कि वो इंग्लिश न्यूज़ सुना करें, ठीक है? या इंग्लिश चैनल जो होता है, अक्सर इंग्लिश चैनल पे कार्टून आ रहे होते हैं, या इंग्लिश मूवीज़ आ रही होती है, या इंग्लिश न्यूज़ जैसे बीबीसी है, ठीक है? वो देखा करें। फिर आप कैसे कर सकते हैं इन्हेंस अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को कि एक पैराग्राफ ले लिया करें या कोई टॉपिक ले लिया करें, अपनी किसी फ्रेंड के साथ, अपनी किसी कोलीग के साथ उसके ऊपर सिर्फ 4 से 5 लाइनें भी अगर आप बोल लें ना डेली, तो आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो भी इन्हेंस होना शुरू हो जाती है। फिर जब आप 4-5 की प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह वो चीज़ क्या होती है, आगे-आगे और ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाती है। ताहिरा मलिक, अगर आपको समझ आती है तो बिल्कुल आप सुनें। Cultural impacts of English. English introduces to us the civilization of the other foreign countries, especially the Western culture. It is through this language that we have shared the wisdom of the West. In the struggle for the independence, English played a significant role for the bringing together our national leaders from the various regions of the country, enabling them to share thoughts in it. English highlights its own culture, which is doing the great harm toward the purity of our national identity is losing status. Students know more about the Halloween, bonfire, ball, Valentine Day than our own festivals. Conclusion: both globalization and the continuation of the colonial language policies by the government of Pakistan have increased the pressure of English on all other languages. While this has also created an increased awareness of the language rights and the movement to preserve the languages, it has generally resulted in the more people learning English. In Pakistan, this means that the poor the poor are under the more pressure than before because they cannot afford the expensive school that the sell English is the exorbitant rates. Yes, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल हैं, उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं।
तो हर जो आपका घराना है वो इतनी फीसेस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो जिस वज़ह से जो बाकी सारे स्कूल हैं उनके स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा हाई नहीं होते। तो ये भी बड़ा एक जो है वो जिसको हम कह लें रियलिटी है। एज़ सच लिंग्विस्टिक्स ग्लोबलाइज़ेशन इज़ एन एंटी पुअर, ठीक है? अम pro-illicit and the exploitative. While it may not be possible to reverse the trend of the girl, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जो अवेयरनेस हो रही है, जो इनोवेशन हो रही है, हम उसको रोक सकें या हम उसको रिवर्स कर सकें। लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल ज़रूर है कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, 2 ज़बानों के कॉन्सेप्ट को हम जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानों को सीखने के अमल को हम लोग जो है वो तेज़ करें, ना कि हम जो 2 ज़बानें हैं उनको कम करने की कोशिश कर दें। This means that we should add to our repertoire at the language to gain the power while the training and the pride in our language. In order to do this, state of our education system should promote the concept of the linguistics rights. ठीक है? तो ये हमारा जो था अभी यूनिट नंबर 3 था। कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू